Okay, so yesterday we studied about different major nutrients, their sources, and their importance, their role in our body. Now, next topic is 2.3, that is balanced diet. सबसे इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है आपको, इसी में आपको डेफिनेटली 2 से 3 सवाल आते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. मैक्सिमम क्वेश्चंस इन ऑल द एग्जाम्स दे आर कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर. बैलेंस्ड डाइट. नाउ we learnt that any food consists of more than one nutrient. ऐसा नहीं होता है कि किसी भी खाने में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट होता है, कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं. बट generally we see that 1 or 2 nutrients are quite large in quantity than other nutrients. So we say that that is a rich source of that particular nutrient. But you see, in the beginning of our discussion we studied that we eat many things, not only one thing. Like if at least if it is a very simple man, simple habits, simple food habits, then also he has at least 2 to 3 items in any meal, like roti, chapati or chawal, rice, at least 1 pulse and 1 vegetable at least. Yes, so at least 2 to 3 components are there, the 2 to 3 items are there. Now why do we eat many things? Why not only one thing? Why not that just we are taking up 10 chapatis and eating all that? Or why are we not taking a big bowl of rice and just eating that? There must be some reason why people say that you should eat some pulse dal also, some vegetable also, some salad and some curd or buttermilk or something like that. So actually you have already studied that our body, it is a very complex system and there are so many things going on, and you studied that we need at least 5 major nutrients. At least there are many nutrients required by our body, but 5 are major. That means they are required in good quantity. And then we have some other nutrients which are called minor nutrients, which we require in small quantities, like vitamins and minerals. They are also quite important, but they are required in less quantity, small quantities, but they are equally important. You cannot stay healthy without them. And then 2 other things, that was fibers and water, dietary fiber or roughage and water. So these many things we require at least to stay healthy. If we are not taking any one of these, we will definitely get sick and develop some problem or get some disease. That is definite, sure. If any one of these component you are not taking in your food, you will definitely get sick in some way. So now that means we need at least these many things, that is carbohydrate, then proteins, then fats, then vitamins, minerals, then fibers, and then water. Now in this also you see that vitamins there is so much, from A to K. Minerals there are so many, from iron, calcium, phosphorus, iodine, sodium, so many, magnesium, zinc,
हाँ, but I am just telling you, so many minerals are also there required. These are also required. ऐसा नहीं ये 4 आपको लिखवाया कि बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट उनके अलावा भी बहुत है. देन फाइबर, देन वाटर, ऑल दीज थिंग्स. So how is it possible, or have you seen any source, any food which contains all of these? No. There is no food or natural food that contains all of them. Only maybe one case, that is mother's milk. Except this, in nature there is no other food item which contains all this. Yes, mother's milk contains almost all except this fiber. फाइबर को छोड़ के लगभग सारी चीजें होती है मदर्स मिल्क में. इसीलिए कहा जाता है कि जो अगर अमृत है कोई चीज तो वो माँ का दूध होता है बच्चे के लिए. तो मदर्स मिल्क which contains all these things which is required for a child, but not for long. वो तो आप साल, 1 साल, 2 साल फीड कर सकते हैं, 3 साल मान लीजिए, whatever, but not more than that. So it is not for a grown person. ग्रोन या चाइल्ड अडल्ट इन सब के लिए नहीं है. मदर्स मिल्क इज अवेलेबल फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन दैट फॉर लॉन्ग. वो भी शुरुआत में आप उस पर कर सकते हैं, बाद में नहीं. सो देर इज नो फूड नेचुरली विच कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स एंड essential components. So what do? We combine certain foods so that we get most of these nutrients from that food. We combine several items in our meal so that we fulfill our maximum requirement. तो सपोज कार्बोहाइड्रेट आपने किससे देखा, किससे मिल जाता है हमें? ग्रेन्स. तो ग्रेन्स यानी चावल, जो है आटा वगैरह जो भी है. प्रोटीन्स सोर्स आपने देखा क्या क्या है? मिल्क है, पल्सेस है, ओके, बीन्स है एंड सो मेनी थिंग्स. फैट आपने देखा, नट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑयल है, घी है वगैरह जो भी है. विटामिन्स, these are vegetables, fruits, and milk etc. मिनरल्स भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में मिल जाते हैं आपको. फाइबर्स भी मिल जाते हैं, वाटर भी मिल जाता है. वाटर ड्रिंकिंग वाटर से भी हो जाता है. सो इफ वी कंबाइन दीज आइटम्स वी कैन गेट मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स. ओके, so this is what is concept of a balanced diet. A diet, a meal which contains all the required nutrients in proper quantity, in suitable quantity according to our regular or daily requirements. So we call it balanced diet. That means balanced, it is having all the required nutrients in suitable proportion. ऐसा नहीं है कि खाली कार्बोहाइड्रेट ही खाए जा रहे हैं, रोटी तोड़े जा रहे हैं और चीज नहीं खा रहे हैं. तो वी विल ओनली गेट कार्बोहाइड्रेट, वी विल हैव एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, बट वी विल नॉट हैव ऑल दीज थिंग्स. तो बैलेंस्ड होगा, वो अनबैलेंस्ड है. कहाँ सारा रिक्वायरमेंट हो रहा है? चावल ही खाए जा रहे हैं, दाल ही पिए जा रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं, खाली सब्जी ही खा रहे हैं, एनर्जी आएगा नहीं. तो सारी चीज़ों को अगर सूटेबल हम अमाउंट में इस तरह से फूड में अपना मिलाते हैं ताकि हमें जो भी जितनी ज़रूरत है हर चीज़ की वो उतना मिल जाए, ऐसा जो डाइट होता है वी कॉल इट अ बैलेंस्ड डाइट. समझ में आया? बैलेंस्ड डाइट, राइट?
फाइबर के बारे में लिखाया था आपको, जो थोड़ा सा ज़रूरी था लिखाया था फाइबर के बारे में कि यू हैव रिटन दैट रफेज, जहाँ रफेज आपको लिखवाया है, डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट। एक पैराग्राफ तो है, थोड़ा सा कहाँ है, आपको काफ़ी लिखवा दिया, उसको आप पढ़िए पूरा। तो रफेज, जिसको रफेज भी कहते हैं, मतलब कि मोटा मोटा जो है, रफ चीज़, फाइबर, रेशा। तो उसका फंक्शन क्या होता है, सोर्स क्या होता है, क्या रोल होता है, सब लिखा दिया है आपको डाइटरी फाइबर्स का। नाउ कमिंग टू बैलेंस डाइट, राइट, the food we normally eat in a day is our diet, यानी डाइट किसको कहते हैं, एक दिन में जो हम भोजन करते हैं उसको हमारा डाइट कहते हैं। भाई आपकी डाइट क्या है, तो मैं डेली इतना खाता हूँ, इतना खाता हूँ, इतना खाता हूँ। जैसे ये जो आपका खली है, खली बॉडी बिल्डर, ठीक है, तो ये बॉडी बिल्डर जो है, इसका नाम, हाँ दरअसल असल नाम इसका दिलीप सिंह राणा है। हमारे स्कूल में आया था, बहुत छोटे थे तब आया था बॉडी बिल्डिंग शो करने। हाँ हाँ, 90s में, 92 के आसपास की बात है। तो उस समय हम नैनीताल में, हाँ, बॉडी बिल्डिंग आके कर दिखाया था, मिस्टर इंडिया। हाँ हाँ, उम्र था कुछ ठीक ठाक। तो वही हमने इसको देखा और इसने अपना डाइट बताया कि मैं डेली 30 या कितने अंडे खाता हूँ, 7 किलो चिकन खाता हूँ, हाँ 7 किलो चिकन खाता हूँ, और इतना ये पीता हूँ, दाल पीता हूँ, ये पीता हूँ, सब चीज़ बता रहा था। तो इट वाज फॉर पर डे। तो वी वर वेरी सरप्राइज्ड। हिज वेट एट दैट टाइम वाज, आई रिमेंबर, 160 kg। ही वाज, हाँ 7 फीट सम इंच टॉल, हाँ 7'2" या 7'3" जो भी है। एंड आई वेंट टू शेक हिज हैंड, देन ही शुक हैंड विथ मी एंड माई हैंड वॉज लुकिंग सो स्मॉल इन हिज, मतलब उसके 2 उंगली में ही ऐसे मेरा पूरा हाथ वो हो गया था। वो हाथ क्या मिला था हमसे, ऐसे बढ़ाया तो मेरा पूरा हाथ उसके 2 उंगली में, इतनी मोटी मोटी तो उंगलियां थी उसकी जो। सो एंड ही वॉज वेरी टॉल, ही वॉज रीचिंग आवर स्टेज लाइट्स, स्टेज पर जो लाइट्स लगी हुई थी वहां तक तो वैसे ही पहुंच जा रहा था, 7 फीट 2 इंच जो है। हाँ, सो डाइट वर्ड से मुझे याद आया उसका। तो डाइट, डाइट का मतलब क्या है, हम एक दिन में कितना भोजन करते हैं, एक दिन में, 1 डे। तो जैसे उसने बताया वो हो सकता है हम लोग का 15 दिन का डाइट हो जाएगा उतना, बट हिज डाइट वॉज टू मच। ही सेड आई हैव टू डू सो मेनी एक्सरसाइजेज, सो मेनी मस्कुलर एक्सरसाइजेज, सो आई नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन, सो आई ईट सो मेनी थिंग्स, ठीक है, आई ईट सो मच चिकन, एग्स एंड दिस एंड दैट, everything he was telling. So because your diet, your requirement depends upon the work that you do, okay, so it depends on the work. So every person may be having a different diet. So diet आप समझ रहे हैं क्या है, a daily requirement of food, okay, right, for growth and maintenance, full stop, for growth and maintenance, for growth and maintenance of good health, comma, our diet should have, our diet our, our diet should have all the nutrients
that our body needs, comma, in right quantities, in right quantities, full stop, not too much, TOO, not too much of one and too little of other. And too little of other. Full stop. The diet should also contain a good amount of roughage and water. UGHAGE, roughage and water. Full stop. Such a diet is called a balanced diet. बैलेंस डाइट अंडरलाइन करेंगे, कोट्स में रखेंगे. ओके, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि बैलेंस डाइट समझ लेते हैं. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज. कहा जा रहा है कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, यानी लगातार हेल्दी रहे और स्वस्थ रहे हम, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारा जो डाइट है, जो फूड है डेली का, उसमें सारी न्यूट्रिएंट्स जो हमें आवश्यकता है, जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत है, और इन राइट क्वांटिटीज़, और वो सही मात्रा में हो. अब ज़रूरत है 1 किलोग्राम का और आप खा रहे हैं 50 ग्राम, तो उसे कोई फ़ायदा है नहीं. और ज़रूरत है 50 ग्राम और 1 किलोग्राम खा रहे हैं तो भी कोई वो नुकसान करेगा, बहुत ज़्यादा खाइएगा. तो राइट क्वांटिटीज़ में होना चाहिए. जो जितनी चीज़ ज़रूरत है उतना ही हमें खाना चाहिए. ठीक है. तो ऐसा जो डाइट, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. साथ ही साथ हमारे भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स के बजाय इसेंशियल कंपोनेंट है, जो कि रफेज एंड वाटर, वो भी होना चाहिए सही मात्रा में. ऐसा जो डाइट होगा, हाँ, ऐसा जो डाइट होगा जिसमें सारी चीज़ें सही मात्रा में होंगी, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन. ओके, तो यू गॉट द आइडिया व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट. नाउ डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? अगर हम कंसिडर करें एक छोटा बच्चा जो 5 साल तक का है, दूसरा जो है 13-14 साल का है, एक ग्रोन अप अडल्ट है 25-30 साल का, और एक फिर ओल्ड एज पर्सन है, कि चारों को एक ही तरह का, एक ही जैसा फूड चाहिए? नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. व्हाई? बिकॉज देयर, एक तो देयर पीरियड ऑफ लाइफ इज डिफरेंट. जीवन का जो अवस्था है वो अलग है, क्योंकि अलग अलग अवस्था में हमारा पता है आपको कि बॉडी का अलग अलग प्रोसेस. बच्चा है वो अभी ग्रो करता है, तेजी से ग्रो करता है. एक एडोलेसेंट है वो भी ग्रो करता है, लेकिन उसका ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है, तो मेंटेनेंस थोड़ा शुरू हो जाता है. और जो एक अडल्ट है 25-30 साल का, उसका एक ग्रोथ तो नहीं होता है, अब खाली मेंटेनेंस होता है. और फिर ओल्ड एज जो है उसमें ग्रोथ भी क्या, मेंटेनेंस भी नहीं, अब धीरे धीरे बॉडी फिर कम होना शुरू हो जाता है.
और उसी तरह से लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसी तरह चेंज होती जाती हैं हर स्टेज पर। ओके, तो जब एक्टिविटीज़ हमारी चेंज हो रही है और बॉडी का जो प्रोसेसेस है वो चेंज हो रहा है, तो फूड एक जैसा कैसे चाहिए हो? नहीं चाहिए होगा। ओके, नाउ एक और इसमें बात आती है कि फूड तो ठीक है, हमने आपको बताया कि ये सोर्सेज हैं, इनको अगर हम अपने फूड में सही मात्रा में लेते हैं तो वी गेट अ बैलेंस डाइट, दैट इज वन। बट उसको सही रूप से खाना, सही तरीके से भी खाना जरूरी है। अब आप फूड ऐसा खा रहे हैं कि जिसका सारा न्यूट्रिएंट आपने लॉस कर दिया है, चला गया है, तो उसको खाने से कोई फायदा है? तो फेंक दीजिए, उससे अच्छा उसको। ठीक है, कोई ऐसा फूड मटेरियल जिसका न्यूट्रिएंट उससे लॉस हो गया है किसी कारण से, आपने इतना भून दिया उसको कि उसका सारा खत्म हो गया न्यूट्रिएंट आग पर। भुना हुआ काजू खाने से फायदा होता है? हाँ, करता है फायदा। और ज्यादा फायदा करता है, मतलब उससे नॉर्मल से ज्यादा फायदा? नहीं नहीं, नॉर्मल ही खाना चाहिए। इसे भुना हुआ काजू तो ठीक है, टेस्ट के लिए वो ठीक है, हल्का वो कर लिया तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही ठीक रहता है। तो कहने का मतलब है कि सही तरीके से भी भोजन को करना जरूरी है, इन राइट वे, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें बने रहें। न्यूट्रिएंट अगर उसका निकल गया तो फिर उसको खा किस ले रहे हैं, और बॉडी पर भी बोझ डाल रहे हैं पचाने का, अननेसेसरी उसको डाइजेस्ट करेगा उतना एनर्जी लगा के और मिलेगा कुछ नहीं फिर। सो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ कि सही चीज आप खा रहे हैं, बल्कि सही तरीके से भी खाना है, इन राइट वे। लिख लीजिए इसको, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, हाँ, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। ई ए, ईटिंग द right kind of food is not enough full stop. It should also be cooked properly. Cooked properly so that its nutrients are not lost. ये सब न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं। फुल स्टॉप। Some nutrients get lost। ये दिखाइएगा एक बार मेडिसिन वाला पैकेट अपना, किस किस कंपनी का दिया है।
एक्चुअली वही IIT रुड़की में, मतलब कि 4th ईयर PhD कर रहे हैं अभी, और लेट से काफी हुआ है इनका, मतलब कि 7वां के 8वां अटेम्प्ट में हुआ है इनका। एक्चुअली कास्टिज्म इतना ज्यादा है ना उसमें, बहुत ज्यादा कास्टिज्म है का, तो देखिए नहीं लेना था प्रोफेसर से। इनके पास एक्सपीरियंस हो गया है, 8 साल से पढ़ा रहा है, HOD है, HOD से मतलब कॉलेज और 4th ईयर में गए हैं इस बार। वही पूछ रहे थे एग्जाम के बारे में क्या नहीं, सब दवा तो ठीक दिया है, सब जो वही है कंपनी देख सकते हो। आइए, हाँ क्या लिखे आपने? लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग and preparations preparations full stop। तो ऐसा है कि हम ये नहीं जानते हैं, बहुत से लोग क्या कर सकते हैं, तो इतना ओवर कुक कर देते हैं लोग और गलत तरह से कुक कर देते हैं फूड को कि उसके न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, जलना भी ज़रूरी नहीं है। फूड जल गया वो तो फिर तो आप खाएंगे भी नहीं, लेकिन इतना कुक कर देते हैं, मतलब अननेसेसरी इतना ज़्यादा तेल डाल देंगे, डीप फ्राई कर देंगे उसको, बहुत देर तक तलते रहेंगे और इतना ज़्यादा मसाले डाल देंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि कुकिंग में नहीं जानते हैं लोग कि आप जब कुक करते हैं ज़्यादा फूड को तो उसका न्यूट्रिएंट सब खत्म हो जाता है, समझ गए? फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है, वो आप फिर खाली उसका अननेसेसरी पार्ट खाते हैं, न्यूट्रिएंट नहीं रहता है। तो फूड को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। अब कुकिंग क्यों आया कंसेप्ट, वाई मैन स्टार्टेड कुकिंग फूड? तो एक तो था कि थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता था, दैट वाज वन थिंग, डेफिनेटली टेस्ट, और इट वाज मोर इजीली टू डाइजेस्ट। पहले क्या है, मांस कच्चा खाता था, जानवरों को मार के कच्चा उसका मांस खाता था, जैसे बाकी जानवर खाते हैं वैसे ही आदमी भी खाता था मार के जानवरों को। तो किसी तरह आग के जैसे खोज हुई और आग में कुछ पड़ गया खाना या आग के पास रखा हुआ था, तो उसने देखा इसका टेस्ट चेंज हो गया और अच्छा लग रहा है टेस्ट, तो उससे आदमी ने कुकिंग करना सीखा। पहले रोस्ट करता था, आग में खाली भून लेता था, थोड़ा आग के ऊपर टांग देता था, थोड़ा आग के पास रख देता था, उससे गर्म होके थोड़ा सा पक जाता था, टेस्ट चेंज हो जाता था। तो बेसिक पर्पज ऑफ कुकिंग वाज टू make it more easily digestible and a slight improvement in its taste। तो उसके लिए कुकिंग की शुरुआत हुई, और आज जो है हम कुकिंग करते हैं खाना बिगाड़ने के लिए। आज है कुकिंग जितना होता है वो इसीलिए होता है कि उसको बर्बाद कर दो पूरी तरह से, कुछ नहीं रहने पाए उसमें खाने लायक। आज हम इसलिए कुकिंग करते हैं। देखिए जबरदस्ती का तेल मसाला, मतलब आश्चर्य होता है। हम दिल्ली जब थे तो देखे कि फल को भी फ्राई करके बेच रहा है, सेब है मतलब पता नहीं क्या बोले, मतलब कि इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स, कि आप जो है फलों को भी अगर आप तल के बेच रहे हैं तो फल कौन खा रहा है? यही सब है, सेब है, पपीता है, और इस तरह के जो रसदार हल्के फल होते हैं, अमरूद है। तो मतलब हम जब स्कूल गए तो वहाँ हमने बच्चों को देखा कि भाई हर चीज़ में वो नमक लगा के खा रहे हैं। वो भी हमारे लिए एक नया था कि भाई जब मीठा फल है तो उसमें नमक क्यों लगा रहे हो? सेब में भी नमक लगा रहे हैं, संतरे में भी नमक लगा रहे हैं, केले में भी नमक लगा रहे हैं। तो मेरे लिए वो बड़ा नया अनुभव था कि भाई हम सोचे बच्चे हम क्या पता नहीं क्यों करते हैं, अपना वही जाने। आई नेवर आस्क्ड एनीवन बट आई सॉ कि भाई कोई नमक लगा के केला खा रहा है,
कोई संतरा है नमक लगा के खा रहा है, कोई सेब भी नमक लगा के खा रहा है, या कुछ फलों में चीनी डाल के खा रहे हैं, चीनी का जो बुरादा और शक्कर होता है वो डाल के खा रहे हैं खरबूज वगैरह में। तो एक वो हमारे लिए अजीब बात थी जो हम नहीं समझ पाते थे, हम लोग ये सब करते नहीं थे। फिर देखे कि सेब को छील के खा रहा है, उसका छिलका हटा के खा रहा है, ठीक है, और भी ऐसे कई फल हैं उनका छिलका हटा के खा रहा है, तो वो भी हमें शुरू में अजीब लगता था। अब उस समय की बात, आजकल तो फैशन हो गया है, लेकिन आज से 30 साल पहले वो बहुत कम, मतलब, और हम लोग छोटे शहर से थे तो ये बड़े, देखिए न्यूट्रिशन छिलके में भी बताया ना, रफेज होता है और भी कई चीज़ें होती है, छिलके में रफेज होता है। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ है कि कुछ दवाओं का भी है तो इसलिए लोग हटा देते हैं, लेकिन आप अच्छे से उसको धो लीजिए तो काम हो जाता है, हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो ऐसा नहीं कि जो हटा रहे हैं वो उसके पोल्यूशन के कारण हटा रहे हैं सोच के, वो खाली नफासत है, झूठ का चोचलेबाजी, ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि सब छिलका हटा के खाए। हाँ, तो इवन यू नो दैट टाइम, अब जबकि वहाँ तो बल्कि बड़े अच्छे फ्रेश फल आते थे, थोड़े शहर का था कि अब इस तरह का मार्केट से कि बेच रहा है जैसे तैसे, तो लेकिन उसके भी छिलके हटा के खा, वो भी हमें बड़ा अजीब लगता था कि भाई छिलका हटा के सेब खा रहे हैं, या और भी ऐसे कई फल हैं। तो अब जो है उस, ये सब तो ठीक है, ये सब देख लिए समझ लिए। अब उसके बाद फिर गए दिल्ली तो देख रहे हैं कि लीजिए भाई चाट मसाला लगा के बेच रहा है सब फल में, फ्रूट चाट, और उसमें चाट मसाला और कुछ कुछ डाल दे रहा है। वो भी समझे कि चलिए भाई मान सकते हैं कि किसी लोग को टेस्ट या हर चीज़ में चाट मसाला ही अच्छा लगता है कुछ लोगों को, तो वो डाल सकते हैं, लेकिन अब उसको फ्राई करके बेचना तो हम आज तक नहीं समझ पाए। और जाइए कनॉट प्लेस में आपको मिल जाएगा बिकता हुआ। हाँ हाँ हाँ, जहाँ 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 तहाँ सब लगाया रहेगा ये छोटा छोटा अपना, और बेचता रहेगा जो है फ्राई करके। तो हम नहीं समझ पाए आज तक उस चीज़ का लॉजिक। तो उसके नीचे भी मार्केट है ना कनॉट प्लेस? हाँ हाँ, नीचे भी है, अंडरग्राउंड भी है। तो ये चीज़ें मतलब कहने, और चलिए वो तो चीज़ है, अब खाना है, खाने की चीज़ें हैं, अननेसेसरी इतना ज़्यादा हर चीज़ में तेल डाल देना, हर मतलब अब जैसे कि हमने देखा वो जो पानी वाला फल होता है सिंघाड़ा जिसे यहाँ कहते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उसको कच्चा खाने में, बॉयल भी करके खाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग उसको भी फ्राई करके खा रहे हैं और घी में। देखिए अरे भाई साहब क्या, और हमें भी लीजिए खाइए बड़ा टेस्टी, हम कह नहीं नमस्कार, मुझे कच्चा ही अच्छा लगता है, मीठा अच्छा उसका स्वाद लगता है, उसको जीरा वगैरह दे के आप फ्राई कर दे रहे हैं घी दे के, तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो मतलब, और सब्जियों को तो देख लीजिए भाई, आज के डेट में आज खाना पकाने का हो गया है कि खाली मसाला डालना, खाली मसाला, किसी को कुकिंग नहीं तो बस खाली मसाला ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए और ज़बरदस्ती उसको भून भान के तैयार कर दीजिए। और मतलब कुकिंग होता है बिना मसाले, थोड़ा बहुत आप कुछ कुछ डालिएगा और इसे फर्स्ट क्लास टेस्ट आता है। हरी मिर्च, इट इज़ सच ए गुड थिंग, हर चीज़ में विटामिन सी और कई सारे और भी मिनरल्स ऐड करता है। थोड़ा सा आप किसी भी चीज़ में फूड में ऐड कर दीजिए, टेस्ट ला देता है अच्छा। हरी मिर्च को भी भून के खाया जाता है। यस यस यस, डबल फायदा करता है। नहीं वो तो टेस्ट के लिए, वैसे आप कच्चा खाइए अच्छी बात है, लेकिन अब उसको भून के खाते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जब रॉ जो चीज़ होता है उसको अगर हम कुक करने लगते हैं, फ्राई करने लगते हैं, नेसेसरी हीट पर बहुत ज़्यादा ये कर देते हैं, तो उसका लॉस्ट हो जाता है विटामिन सब, ये सब जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है वो फिर आपके काम का नहीं रहता है। तो लेकिन इस चीज़ का कोई अवेयरनेस 99.999% लोगों को नहीं। उनको लगता है खाना पकाने से बड़ा अच्छा हो जाता है, भाई भोजन तैयार हो जाता है, कोई चीज़ को पका दीजिए, इसका अवेयरनेस है ही नहीं।
कि खाना पकाने से उसके न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं और उसमें तरह तरह की प्रक्रिया से लोग पकाना, ऐसे ये करिए वो करिए, इतना देर तक गर्म कर लीजिए, ये तेल डाल दीजिए, वो मसाला डाल दीजिए, ये चीज़ डाल दीजिए और भूनते रहिए, हो गया कबाड़ा खाने का। तो ओवर कुकिंग लीड्स टू इवन कुकिंग, आजकल हर चीज़ को ही कुक करके खाने लगे हैं, जबकि पहले था कम से कम कच्चा। हम लोग भी थे तो स्कूल में कल्चर डाला गया, इवन पत्ता गोभी जो होता है उसको भी कच्चा सैलड की तरह हम लोग खाते थे। आज कोई दिख जाए तो हमको तो नहीं दिखा कोई खाते हुए कच्चा। हाँ, वही बता रहे हैं, वो एक अच्छी हैबिट थी। आज देख लीजिए, आप ढूंढ लीजिए पूरा पटना में गिने चुने आपको लोग मिलेंगे जो खाते होंगे। ठीक है, तो रॉ खाने का चीज़ों को एक बहुत बेनिफिट है। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको रॉ भी खाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फल हैं। अब फल देख लीजिए, आप फल खाने वाले यंग जनरेशन में आपको गिने चुने मिलेंगे, सब जूस पीने वाले, सब जूस पीने, जूस चाहिए सबको, फल नहीं कोई खाना चाहेगा। संतरा खा ले तो उसका छिलका बिल्कुल चाहिए, उसको साफ छिलका हटाया हुआ। हमको वो अजीब लगता है कि अरे उसका मतलब जो उसके रेशे होते हैं वो तो रहने दीजिए, वो रफेज है, हटा दी, अंदर जो वाइट 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 उस पर, हाँ, उसको खाना चाहिए, वो रफेज होता है, इसीलिए भगवान ने उसमें डाला है कि हमें पचे अच्छे से। लेकिन वही जैसा आप देखते गए सीखते गए तो सब लोग पूरी तरह हटा के उसको फिर खाते हैं, तो वो रफेज आप हटा दे रहे हैं। ईश्वर ने तो दिया ना उसमें आपको कि खाओ रफेज, लेकिन आपने इग्नोरेंट में आप नहीं जाने कि क्या उसका इंपॉर्टेंस, उसको हटा के फेंक दिया और खाए। मूली आप खाने जाते हैं, मूली का पत्ता तोड़ के वो अलग कर देता है, मूली लेके आप आ जाते हैं या घर पे तोड़ के फेंक देते हैं उसको, जबकि मूली का पत्ता में इतना आयरन होता है, इतना मिनरल्स होता है, और उसका भून के खाइए, बड़ा टेस्टी लगता है। यस, हम तो डेफिनेटली खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दिल्ली में बहुत से लोग खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, भून के, इनफैक्ट मूली के साथ ही मूली का सब्जी भुंजिया टाइप का बनता है, उसे मूली को भी काट के उसके पत्ते मिला के भून लीजिए, फ्राई कर हल्का हल्का डाल के, बहुत टेस्टी। हम लोग को तो लगता है टेस्ट डेवलप हो गया, हो सकता है बहुतों को नहीं लगता होगा। तो एक बार हम ऐसे ही बस में कहीं जा रहे थे और एक आदमी आयुर्वेदिक जो है किताब बेच रहा था, तो वो चढ़ा और उसने उतने देर, थोड़ी देर चलती रही बस, उसमें बताते गए, इतनी चीज़ें उसने बताई। और उस दिन मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि उसने बताई कितनी चीज़ें हम फेंक देते हैं, और वो बोला कि उसने कि उसका इतना फ़ायदा होता है, लेकिन लोग जानते नहीं, अवेयरनेस नहीं है, उसको फेंक देते हैं। जैसे केले का छिलका भी उसने बताया, उसका भी यूज़ बताया कि कितना उसका फ़ायदा होता है, दवा होती है वो केले का छिलका। तो आपको हम बुक वो करा देंगे उसको। हाँ, तो केले का छिलका भी उसको बताया कि उसको सुखा के और उसको पीस के वो दवा की तरह काम करती है बहुत सारे पेट के प्रॉब्लम्स। केले का छिलका सुखा दीजिए, हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद उसको ड्राई हो जाए बिल्कुल तो पीस लीजिए और उसको रख लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़, बहुत सारे फल हम खाते हैं, उसके बीजों को फेंक देते हैं, उसके बीज में बहुत सारे गुण होते हैं। हाँ, तो यही है, देखिए हमारे यहाँ है नॉलेज, लेकिन अब मतलब कि जो घुल जाता है केला, थोड़ा ब्लैक हो जाता है, उसको भी रखने से फायदा करेगा कि ताजा केला का छिलका? नहीं नहीं, कोई छिलका वो सड़ता उड़ता नहीं है, वो काला पड़ जाना उसका खाली कलर गर्मी कारण होता है। हाँ, गीला होने लगता है, क्योंकि अब नेचुरल है कि वो गुदा है और गर्मी है तो वो होने लगता है, धीरे धीरे गलने लगता है, तो सड़ता नहीं है, वो सिर्फ उसका सॉलिड लिक्विड से वो पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है। तो खैर, कहने की बात है कि सो मेनी थिंग्स, तो वी डोंट नो, लोगों में उसका नॉलेज ही नहीं है, और हम उसको वेस्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा तो देखिए चावल आज जितना मार्केट में हम खरीद रहे हैं वो सब पॉलिश्ड राइस, और पॉलिश्ड राइस का मतलब, हाँ, उसके अरवा चावल, वही उसके ऊपर का जो एक परत है हटा दिया गया है,
जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हम फल सब्जियों को इतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को काट के धोते हैं, करते हैं, काटने के बाद धोते हैं तो बहुत सारे उसके न्यूट्रिएंट्स तो बह जाते हैं पानी के साथ धुलने, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो काटने के बाद नहीं इसलिए धोना चाहिए। लोग क्या करेंगे, काट लेगा पहले फिर धोएंगे। अरे धोने से पहले काटना चाहिए, काटने से पहले धोना चाहिए, फिर काट के बनाइए अगर बनाना ही है तो। नहीं तो स्टीम करके खाइए, बहुत सारी चीज़ों को बॉईल करके खाइए, कच्चा खाइए, तो देखिए फिर आपका हेल्थ क्या होता है। और फिर हम खाने को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इतना ज़्यादा उसमें तेल मसाला ऐड कर देते हैं कि बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और जब आप उसको खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो आपके बॉडी का सारा एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है। अब पढ़ाई अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो उसका पढ़ने में क्या मन लगेगा, क्योंकि दिमाग में तो एनर्जी जा नहीं रहा है, सारा एनर्जी तो खाना पचाने में खाने के बाद लगा हुआ है। तो आपको इसलिए खाने के बाद आलस आता है, सुस्ती आती है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है। तो लाइट फूड खाना, और उसका भी फूड का टाइमिंग है कि हाँ किस समय कैसा भोजन करें, ताकि वो हमारे डेली शेड्यूल के हिसाब से बेनिफिशियल हो। ये सब बताने का मुंबई में लाखों रुपए लोग लेते हैं। मैं आपको बताया ना इतनी देर बाद, हाँ जान लीजिए, मुंबई चले जाते हैं ऐसे। अच्छा, तो डाइटिशियन जो कहे जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के डाइटिशियन होते हैं, सब यही सब बताते हैं, और इतना एक्सपेंसिव उनका ये सब होता है। तो बैलेंस डाइट समझ गए, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, एक तो वो बात है। दूसरी बात है ईटिंग इन अ राइट वे, बहुत ज़रूरी है। देन यू विल बी हेल्दी, यू विल लिव फॉर लॉन्ग एंड यू विल हैव अ मोर बेटर लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ। अपने लाइफ में जब हेल्दी रहे, कहा गया कि एक कहावत है, क्या तो है, सुख पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है तो वो सबसे बड़ा सुख है, पहला सुख है वो इस जिंदगी का, इस दुनिया कि हम हेल्दी हैं। आप बीमार होकर देखिए कितना तकलीफ है। हाँ सही बात है। बीमार, तो इसलिए ये शरीर कैसे हेल्दी रहेगा और अपना अच्छे से परफॉर्म करेगा। अब पता चला हाथ में दर्द है, पैर में हमेशा दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर इस धरती पर बोझ हो जाता है। तो जैसा खाइएगा, पतंजलि ने यही कहा, हमारे यहाँ पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो योग के फाउंडर थे, उनका नाम कैप्चर कर लिया रामदेव बाबा ने। हाँ, पतंजलि उन्हीं के नाम पर पतंजलि कर दिया। पतंजलि ऋषि थे, महर्षि पतंजलि थे जिन्होंने योग का एक योग सूत्र लिखा। हाँ, वही योग है। तो उसी पतंजलि योग का जो इन्होंने पतंजलि नाम का अपना ब्रांड बना लिया, पतंजलि। ठीक है, तो ऋषि पतंजलि थे। योग दर्शन, योग उनका एक फिलॉसफी है पूरा, उसको पढ़ना होता है फिलॉसफी सब्जेक्ट में। तो योग के बारे में, खासकर फूड के बारे में उन्होंने बहुत कुछ हमारे यहाँ जो है लिखा था। तो मैंने बचपन में उनकी एक लाइन पढ़ी थी कि जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही हो जाएंगे, व्हाट यू ईट यू बिकम। तो दैट टाइम आई वॉज कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग समहाउ। तो ये चीज़ होता है कि जो आप खाइएगा नेचुरली है, जो आप खाइएगा उसी से आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और उसी के अनुसार आप काम करिएगा। तो इसीलिए अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह का फूड या डाइट बताया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए बैलेंस्ड डाइट का कंसेप्ट और खाना किस तरह खाना चाहिए। ठीक है, उसको बर्बाद नहीं कीजिए, उसका फ़ायदा लीजिए। उसको बेकार करके खाने का क्या मतलब है, इतना पैसा दे के सब्जी खरीद के लाइए और फिर उसको बेकार करके खाइए। हाँ, नाउ तो अभी आपने लिखा कि सम न्यूट्रिएंट्स दे गेट लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। अब
होता क्या है कि जैसे आपने सलाद बनाया, एक छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, सलाद बनाया, एक प्लेट में रखा, उस नींबू का रस, नमक वगैरह जो भी है डाला और रखा, और फिर लोग खाया। तो अब होता क्या है कि आप उसमें रस डाले, उसका रस निकल जाता है क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, और रखा रह गया थोड़ी देर तो उसका नमक डाल दिया तो पानी वगैरह रस छोड़ देता है सब, तो उसका सारा ज़्यादातर न्यूट्रिएंट जो है वो आपके निकल गया उस लिक्विड में, और उस लिक्विड को हम बाद में फेंक देते हैं। हम तो सैलड खा लिए, बाकी चीज़ प्लेट चला गया, लेकिन उसका ज़्यादातर जो उसका न्यूट्रिएंट्स था वो तो रस में से निकल के रस में चला गया और प्लेट के साथ फेंका गया वो। समझ रहे हैं? तो समझदार लोग क्या करते थे, उसमें जब बचता था उसमें पानी मिला के हल्का सा और उसको पी जाते थे, क्योंकि उसी में सारा विटामिन ये सब फिर आ जाता था। समझ रहे हैं? तो इस तरह से मतलब छोटी छोटी चीज़ से आपका वो सब लॉस हो रहा है। हाँ, आगे लिखिए इसमें। चिकन को जिसको खाने का आदत है, तो उसके जो हानि करेगा फ्यूचर में कि बेनिफिट? चिकन, तेल मसाला ये सब ज्यादा, हाँ ठीक है, उसको मतलब अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। अगर आदत ही है तो ठीक है, आदत है तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। उसके लिए आदमी को फ्यूचर में दिक्कतें होगा, जैसे कि किडनी खराब हो जाना। नहीं, खराब क्यों होगा, थोड़ा थोड़ा खाए, और लेकिन उसको पचाए भी साथ में ना। नॉनवेज पचाने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। हाँ, कम से कम 4 किलोमीटर हाँ 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 हाँ, उसके लिए अगर आप एक्टिव हैं, आपका पच जा रहा है ठीक से बॉडी, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन नॉनवेज आज के डेट में आप लोग अगर पढ़ने वाले हैं तो कम खाना चाहिए, इतना कि डाइजेस्ट हो जाए इजीली और उसको आप बॉडी में यूज़ कर पाएँ। नहीं तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में फैट और सब चीज़ होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, हाँ हाँ, फुल स्टॉप। इफ़ द वेजिटेबल्स, लिख लीजिए, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स and fruits are washed after cutting, are washed after after cutting or peeling them, कॉमा, पील भी कहते हैं उसको, छीलना भी कहते हैं, और छिलके को भी पील कहा जाता है। हाँ, पीलिंग भी कहते हैं उसी को, पील। हाँ हाँ, छिलके को, उसको अभी ध्यान में, उसको भी शायद पील ही कहते हैं। चलिए हम उसको ध्यान में देख लेंगे। यानी दोनों है, वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। छिलके को भी पील कहते हैं। हाँ हाँ, छिलके को भी ऐसे पील कहते हैं, लेकिन और भी वर्ड होता है। हाँ, पीलिंग देम, कॉमा, इट मे रिजल्ट, स्किन भी कहते हैं उसे, उसको, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। full stop. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals
full stop. Similarly, repeated washing of rice and pulses अब जैसे कुछ लोग को जो है सफाई की बीमारी, तो चावल को इतनी बार धोएंगे जब तक 5-10 बार नहीं धो लेंगे मन नहीं भरता है, तो बस वहाँ भी लॉस हो जाना है। और ऐसे देखिए होता क्या है कि चावल के ऊपर देखिए ईश्वर ने सारा प्रकृति बनाया, सारा चीज़ बनाया है इस तरह से कि फायदेमंद हो। जैसे चावल के ऊपर जो छिलका पतला होता है ना, जो हम हटा देते हैं, वो इसीलिए होता है। और उसी तरह फलों और सब्जियों के भी ऊपर छिलका इसीलिए होता है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, ताकि उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी चीज़ है, वो निकले नहीं, बाहर बर्बाद ना हो। तो वो एक प्रोटेक्टिव कवर के तौर पर प्रकृति उसमें पैदा करती है। और हम उसको जब हटा देते हैं तो क्या होगा, निकल के चला जाएगा। तो चावल का हुआ क्या कि आप बाजार से लाए खरीद के, तो उसका तो ऊपर वाला परत हटा हुआ है, और अब आप उसको धो रहे हैं तो उसका निकल जा रहा है। सब्जी का आप हटा दे रहे हैं छील के, अब फिर धो रहे हैं। फलों का छिलका हटा दे रहे हैं, अब फिर धो रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि छिलका अगर हटा दिया तो फिर तो उसका प्रोटेक्शन गया, फिर आप धोइएगा तो न्यूट्रिएंट बह जा रहा है उसका पानी में। छिलका के साथ ही खाना चाहिए। हाँ, तो कोशिश करना चाहिए, अच्छे से धो लीजिए, ठीक है। अब इंसान का क्या करे, वो भी है बहुत उल्टा पुल्टा तो करता ही है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छे जगह ठीक ठाक देख के खरीदिए और उसको ठीक से धो लीजिए, पानी में भिगा दीजिए, छोड़ दीजिए भिगा के। तो अगर कुछ होता है ऐसा डस्ट या कुछ भी, तो वो निकल जाता है पानी में। छिलके के साथ ही खाना चाहिए लगभग। बिहार में तो अभी इतना बुरा स्थिति नहीं हुआ है। हाँ, दिल्ली में लोग हटा के खाते हैं तो गलत नहीं करते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ इतनी स्थिति बुरा खराब नहीं हुई है। हाँ, पल्सेस may remove some vitamins and minerals present in them. फुल स्टॉप। ओके, तो जो आपको बात बता रहे थे वही चीज़ है कि हम बार बार धोने से, काट के धोना, छील के धोना, इससे विटामिन्स मिनरल्स बह के निकल जाते हैं पानी के साथ। या उसका स्किन, आप जब स्किन में भी आपने लिखा कि द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन मिनरल्स एंड विटामिन्स, छिलके में भी होता है, नहीं जानते हैं लोग। देखिए होता क्या है कि हम अपने पूर्वजों, पहले के लोगों को देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो पहले क्या था, इतनी कमी नहीं थी। पहले क्या है, लोग इतना नेचुरली खाते पीते थे कि उनको कमी बहुत नहीं पड़ता था, ठीक है। तो वो इग्नोर कर देते थे इन चीज़ों को, ठीक है भाई चलो छिलका हटा ही दिया कभी, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन अब तो आपको कमी हो गई है। आप जो बाजार से फल सब्जी खरीद रहे हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, वो नाम के फल हैं खाली, वो नाम के फल हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, ये जान लीजिए। और उसको भी अगर आप काट वाट के और छिलका हटा के छील दे रहे हैं तो फिर तो वो कबाड़ हो गया। आज न्यूट्रिएंट्स हैं ही नहीं फल सब्जी में, खाली नाम पर बिक रहे हैं। आप कहाँ टेस्ट रहता है, कहाँ मिठास रहती है किस फलों में। हम तो अभी आम खा रहे हैं, वो भी लग रहा है पूरा दवा दे के गला दिया है, लेकिन मिठास है नहीं। अब कहे कि भाई गांव से भिजवा देते हैं, हम कहे इतना टाइम नहीं है, एक तो गर्मी इतनी है, बाहर जाने का मन नहीं होता है। कहे कि पेड़ से तोड़ा हुआ है, हम कहे अभी टाइम नहीं। तो लेकिन क्या करें, यहाँ तो शहर में तो यही हाल है।
तो फल सब्जी तो इसलिए एक तो वैसे ही मतलब फल सब्जी जितने आ रहे हैं वो आप मान लीजिए कि कोई काम के नहीं है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, उसमें से भी अब निकाल ले रहा है सब दवा के रूप में बेचने के लिए। बिजनेस ऐसा चढ़ा हुआ है सबके सिर पे कि अब इंडस्ट्री पूरी चल पड़ी है, न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलता है, न्यूट्रिएंट्स का फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो वो आपको कैप्सूल में लीजिए, विटामिन ए का कैप्सूल खाइए, विटामिन बी का कैप्सूल खाइए, विटामिन सी का कैप्सूल खाइए, प्रोटीन पाउडर पीजिए, प्रोटीन एक्स सब कंपनी अपना अपना लाया हुआ है, सिप्ला वगैरह सब, प्रोटीन का पाउडर खाइए, ये सप्लीमेंट खाइए, वो टैबलेट खाइए, वो सारा अब ये जो लिखा हुआ है ना ये सब टैबलेट में खिलाएगा आपको। अब विदेश में होता है, हम फिल्म देखते हैं, इंग्लिश मूवीज तो देखते हैं, उसमें बाथरूम है या रूम है, उसमें अपना कैबिनेट छोटा सा अलमीरा खोलता है, 25-30 दवाएं रखी रहती है और निकालेगा उसमें से, जब खाना खाया 6-7 दवाएं जो है निकाले फांकेगा। वो लाइफस्टाइल बन चुका है वहां का लाइफस्टाइल बन चुका है, और उनको डेली 10-12 तरह की दवा खानी है, कोई भी आदमी हो, समझ गए। तो ये इंडस्ट्री, और इंडिया में भी यही अब कर रहा है धीरे धीरे। कई जगह हम जाते हैं तो उनके घर हमें लगता है कि वो मेडिसिन शॉप है। मैं बता रहा हूं 50 तरह का दवा वहां जरूर रहता है, उससे भी ज्यादा, 50 भी हम कम कह रहे हैं आपको। तो और लोगों को फिर और मिसकंसेप्शन क्या हो गया है, फैल गया है आजकल, दवा लगता है अमृत है, दवा फांक जाइए, पेट दर्द हो रहा है दवा फांक जाइए, कमजोरी हो रहा है ये दवा खा लीजिए, ये हो रहा है, मतलब मार्केटिंग है, देखिए बिजनेस है, मार्केटिंग है, हर चीज। आज ग्लूकॉन डी इस तरह बेचा जा रहा है कि भाई पी लीजिए, दम गर्मी है, ग्लूकॉन डी पी लीजिए, ये पी लीजिए, ये शरबत पी लीजिए, वो ड्रिंक पी लीजिए, वो ड्रिंक पी लीजिए। फल खा लीजिए खरीद के नहीं कहेगा, ग्लूकॉन डी और तरह तरह का और भी आ गया है, मतलब ग्लूकॉन डी तो फिर भी ठीक है, और तरह का बहुत सारा आ गया है। हाँ, टैंक भी आता था हमारे ही समय, आज से नहीं बहुत सालों से आता है, 50 साल से आ रहा है वो। तो इस तरह का बहुत सारा चीज है, रूह अफ़ज़ा क्या क्या शरबत है, आप जाइए 50 तरह का शरबत बिक रहा है, खाली फ्लेवर, वाहियात। हमको कोई कहता है मन करता है फेंक दे, खाली फॉर्मेलिटी में पीना पड़ जाता है, क्या कहें, नहीं तो मना कर देते हैं। अब यहाँ बिहार में ऐसा है कि मना भी कर दीजिए तो बुरा लग जाता है, भाई इतना प्यार से पिला रहे हैं नहीं पी रहे। हाँ, तो क्या करें, वाहियात। हमको बाजार का चीज़ तो दम आई हेट। घर के बाहर हम खाना पीना नहीं चाहते हैं, कोई चाहे 5 स्टार हो चाहे कोई हो, बाहर का घर भी हो, लेकिन मजबूरी है, जीना है समाज में तो करना पड़ता है। तो ये सब अब आपको फ्यूचर में सब दवा के रूप में खिलाने जा रहे हैं, क्योंकि जो उग रहा है उसमें है नहीं, वो सीड भी ऐसा ही बना रहा है, सब हाइब्रिड सीड बन रहा है, वहाँ भी पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं किसान जो खेत में अनाज उगा रहा है बहुत बढ़िया उगा रहा है, क्योंकि जो बीज देगा वही ना उगेगा, और बीज ही जब ऐसे बन रहे हैं कि जिसमें कोई न्यूट्रिएंट रहेगा नहीं, खाली नाम का गेहूं, हाँ गेहूं खा रहे हैं, इतना चावल खा रहे हैं, उसमें कोई काम करना, ठगना है। वहाँ भी सरकार को ठगने की नीति बनी हुई है सरकार की भी, प्रोडक्शन बढ़ाना है, ज़बरदस्ती दिखाने के लिए हम इतना टन गेहूं उत्पाद कर रहे हैं, और उसमें काम का तो है नहीं कुछ, ठीक है। तो क्या करिएगा, नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो सब कोई ठगेगा ज़िंदगी में। जब स्कूल भेजता है गार्जियन पढ़ने तो उस समय बच्चे बेचारे पढ़ते नहीं हैं और चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। तो अब ये जो है ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाम से देख रहे हैं, जितने आपको पैकेट में टैबलेट्स और क्या क्या बिक रहे हैं, ठीक है, तरह तरह के, ये बोलेगा ये मिनरल्स है, ये देखिए क्या 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 नाम से बिकता है, रिवाइटल और बहुत सारे इस तरह का जो है, ठीक है, ये दवा खाइए, टैबलेट वो टैबलेट, ये कंपनी वो कंपनी, ये सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट। कि अभी तो खैर चलिए थोड़ा सा ये हुआ है कि योगा का कम से कम ये हुआ है, तो इतना प्रचार प्रसार हुआ है, तो लोग थोड़ा सा आयुर्वेदिक चीज़ों में उनका कॉन्शसनेस बढ़ा है। तो आयुर्वेदिक चीज़ जो हमारे देश का अपना नेचुरल जो एक रिसोर्स है, उसको लोग थोड़ा सा समझें हैं।
थोड़ा सा, वो भी बहुत नहीं समझे हैं, थोड़ा सा समझे। सो देर आर दीज, तो ये रहेगा ही नहीं तो आपको दवा के रूप में खिलाएगा, टैबलेट खा लीजिए मिनरल। देखिए सबको देख रहे हैं, विटामिन ए का कमी है, विटामिन ए का टैबलेट अननेसेसरी खाइए, और डॉक्टर कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है सबको सुन के। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप कितना समझाते रह जाइए, डॉक्टर कहेगा ये सर टैबलेट खा लीजिए, ये मैडम टैबलेट खा लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, हाँ हाँ टैबलेट खाएंगे। जिसको जरूरत से ज्यादा कमी है तो उसको तो खाना पड़ेगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा कमी है तो वो तो आप बीमार हैं, तो उसका तो इमीडिएट एक इमरजेंसी उपाय है, इलाज है। लेकिन ये थोड़े है कि आप उसी को खाते रहिए, वो तो आपको इमरजेंसी के लेना है कि हाँ अभी कमी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि आप खा नहीं रहे थे, तो उसको कमी को रिकवर कीजिए। और वो भी आपको क्या लगता है, दवा खाने से रिकवर हो जाता है? आपका बॉडी जो खाना पचा के चीज़ों को लेने का आदत है और उसको आप दवा की तरह दे दे तो वो हो जाता है क्या? ये भी एक मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, जिसको पूरे दुनिया का फार्मा इंडस्ट्री यूज कर रहा है। हर चीज का एक तरीका है और वो तरीके से ही काम करता है। आपका बॉडी का भी एक प्रोसेस बना होता है, कैसे वो फूड को डाइजेस्ट करेगा और उससे वो जानता है कि हमें न्यूट्रिएंट मिलना है। आप दवा के रूप में खा लेते हैं, ठीक है, अब आदत है ब्लड में जो जाएगा फूड में तो उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन आपको लगता है कि वही फायदा करेगा जो आप खाना से खाएंगे? नहीं, वही कैल्शियम आप खाने से लेते वो आपको ज़्यादा फायदा करता, बॉडी में लगता ज़्यादा। बहुत लोग खाना बहुत खाते हैं, मोटाते नहीं। अगर खाना खाने से ही मोटाता तो खाना खा लेते और मोटा जाते, हेल्दी हो जाते, लेकिन नहीं होते हैं खाना खाने से। खाना खाने से भी नहीं ना हेल्दी होते हैं, तो आप ये कैसे मान लेते हैं कि दवा हम खा लेंगे और हेल्दी हो जाएंगे? क्योंकि बॉडी आपका, देखिए आपका माइंड डेवलप नहीं है, 2 साल का बच्चा है, उसको ला के हम पूरा यहाँ साइंस का लेक्चर दे देंगे, वो समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका माइंड उतना डेवलप नहीं है समझने के लिए। समझ रहे हैं? एक और भी कोई बच्चे को ले आइए, 10वां का बच्चा हो, वो भी पढ़ा लिखा नहीं, कुछ जानता नहीं, और उसके सामने मैं बोलना शुरू कर दूं इंग्लिश में हाई फाई एडवांस ये सब साइंस का, तो समझ जाएगा? नहीं, क्योंकि वो उस सिस्टम में नहीं है समझने के। उसको बहुत बेसिक बात ही बोलेंगे तब उसको थोड़ा समझेगा, अच्छा ये बता रहे हैं ये बता रहे हैं, क्योंकि उसका माइंड उसी तरह का ट्रेंड है। समझ में आ रही बात? तो हमारा बॉडी भी ट्रेंड होता है। आप ज़्यादा खा लेते हैं या कोई चीज़ तो क्यों आपका पेट खराब हो जाता है? इसीलिए क्योंकि वो उस तरह का पचाने का उसको नहीं है कैपेसिटी, नहीं है ट्रेनिंग उसको। तो दवा आप खाली घोंट लेते हैं और उससे वो चीज़ ब्लड में ऑब्जर्व होकर सही काम करेगा, ये ऐसा नहीं है। लेकिन करता है, बट दैट इज वो इमरजेंसी के लिए या बीमार आदमी के लिए, चलिए ठीक है, वो बीमार के लिए उपाय होता है, दैट इज नॉट फॉर ए हेल्दी पर्सन। लेकिन शॉर्टकट में जैसे फल से जूस पे आ गए, दिल्ली में देखिए सब्जी का भी जूस पीते हैं लोग, सब्जी का भी जूस पीते हैं। आज से नहीं, ये 30 साल से हम देख रहे हैं दिल्ली में। तो वहां क्या है, सुबह सुबह जाएंगे टहलने, बोलेंगे भाई साहब सब सब्जी का मिला के जूस बना दो। यहाँ भी बिकने लगा है अब धीरे धीरे। जू के आसपास, इको पार्क के आसपास जाइए, सुबह सुबह बेचता है। हाँ हाँ, सब गाजर डाल देना, टमाटर डाल देना, पालक डाल देना, बीट डाल देना, थोड़ा करेला डाल देना, थोड़ा लौकी डाल देना, क्योंकि वो उनके पास इतना टाइम नहीं है या प्रोसेस अवेलेबल नहीं है कि वो सब्जियां खा पाएँ ठीक से। तो वो कोशिश करते हैं कि चलो जूस में ही पी लें। मैं बता रहा हूँ बिक रहा है बहुत सालों से, आज से नहीं, और लोग सुबह टहलने जाते हैं पीते हैं। यहाँ भी वो कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लाइन से जूस वाले सब्जी वगैरह सब लेके लगे रहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो रहा है, उसके लिए करना ये है कि आपको जो करना है, लिविंग स्टाइल को सुधारिए, एक्टिव रहना है, आपको काम करना है, कुछ गेम्स खेलना है, या अगर एक्टिविटी आउटडोर एक्टिविटी करना है तो वो करना पड़ेगा, या सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए। बॉडी को तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? बॉडी को उसको पचाने लायक बनाइएगा, पचाएगा तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा।
आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, बच्चा पढ़ना नहीं था पहले, फिर सोचने लगता है मुझे पढ़ना चाहिए, तो क्या एकाएक बैठ के 10 घंटा पढ़ लेता है? नहीं, पहले 1 घंटा शुरुआत करता है, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर उसकी धीरे धीरे जैसे जैसे करता जाता है, पर ट्रेनिंग तो आदत बढ़ती जाती है, फिर 2-2 घंटा भी पढ़ सकता है, 3 घंटा, फिर जब उसका कैपेसिटी डेवलप होता है एक स्टेज में बैठ के 5 घंटा भी पढ़ लेता है, क्योंकि वो कैपेसिटी डेवलप अपने माइंड को उस हिसाब से ट्रेन करता है, तैयार करता है। वही हाल हमारे बॉडी का भी है। ठीक है, हाँ आगे लिखेंगे। इन देम, नेक्स्ट पैराग्राफ, वी ऑल नो दैट cooking improves the taste of food. Improves the taste of food and makes it easier to digest. Full stop. At the same time, comma, cooking also results in loss of certain nutrients. न्यूट्रिएंट्स, जैसे देखिए पहले के जो लोग थे कुछ समझदार, तो वो कहते थे कि कच्चा दूध पियो, आदत डालने की कोशिश करते थे अपने बच्चों की कच्चा दूध पियो। आज कितने लोग कच्चा दूध पी के पचा लेंगे बताइए? आज आपके जनरेशन में कितने लोग कच्चा दूध दे दिया जाए पी के उसका पच जाएगा, पेट खराब हो जाएगा है? और पहले लोग थे तो आदत कोशिश करते थे किसी तरह बच्चे को कि आदत लगाए कच्चा दूध पीने का। सुने हैं, देखे हैं? नहीं सुने। तो पहले जो इसीलिए कि गाय जब दुहाती थी ना तो बच्चे को बुला के कि इसके डायरेक्ट मुँह में दे दो दूध, या बाल्टी में है तो उससे थोड़ा सा उसको निकाल के दे दो कि कच्चा दूध पीना चाहिए। आज धर्म बन गया है, ये धर्म की तरह होता है कि दूध लाए तो पहले उसको उबाल दिए, और हम अगर कहते हैं कि कच्चा पी तो अजीब सा मुँह बनाते हैं लोग। हमने पिया है बहुत दिन, एटलीस्ट पैकेट का जो मिल्क, जो पैकेट में जो आपको दूध मिलता है वो तो पहले ही पास्चुराइज्ड होता है, वो तो कच्चा रहता ही नहीं है, लेकिन उसको भी लोग मानते हैं कि नहीं कच्चा आप लाएंगे तो पहले सबसे पहले उसको बॉईल कर देंगे। समझ रहे हैं? तो अगर मेरे कहने के कितना ही हम कोशिश कर लें कि भाई उसको डायरेक्टली आप कंज्यूम कर लीजिए या मुझे दे दीजिए, नहीं नहीं नहीं, बिना बॉईल किए तो वो बेकार होता है। क्या कहिएगा, किसको समझाइएगा? तो नहीं समझा सकते हैं। फ़ायदा है कि फ़ायदा यही है कि उसका जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट और कई सारे उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि वो गाय के भी पेट में होते हैं, उसके दूध के माध्यम से हमारे यहाँ आते हैं और हमारे पेट में भी वो फ़ायदा करते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। तो उसको जब आप गर्म कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं गर्म होकर। आपका खाना कैसे पचता है अंदर, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया का भी रोल होता है खाना पचाने में। वो बैक्टीरिया नहीं, अगर किसी कारण से कम हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, इसलिए आपका डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, पेट खराब हो जाता है, गैस बनता है। इसीलिए आपको जब एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है तो उसके साथ 2-3 और दवाएं, गैस का दवा, एक विजिलैक और कई सारा लैक्टिक एसिड का दवा दिया जाता है, ताकि वो पेट का जो बैक्टीरिया है उसको मेंटेन करे। वो बैक्टीरिया अगर मर गए तो आपको गैस बनेगा, आपका तबीयत गड़बड़ा जाएगा, खाना नहीं पचेगा। तो कई चीज़ें और भी होती हैं। तो मिनरल्स अपने बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में रहता है तो उसको पी लेने से फ़ायदा करता है, और उसको बॉईल कर दिए तो वो हो गया काम तमाम उसका। तो क्या कहें, मतलब कि
क्या कर सकते हैं भाई, सब जो प्रकृति है दुनिया को बदल नहीं सकते हैं शायद, मुझे लगता है। उल्टी सीधी आदतें कहाँ से लोग, और इतना वाइड स्प्रेड है, माने